Special guest lined up next. But before I tell you more about the guest and the story he represents, it's important to put things in context. Patanjali has been in the news of late because there's much concern about whether or not the brand of Patanjali has seen a bit of a reset and perhaps some sort of a slowdown, devaluation as well, so to speak. Mubina joins in to put things in perspective on whether the Patanjali magic is still working. Mubina? You know, Tanveer, just about 2 years ago, we did have almost everyone wanting to try out these Patanjali products, whether it's the soap, whether it's the shampoos, or even the noodles for that matter. After clocking in revenues of just 300 crores in 2010 and zooming to all the way 10,000 crore rupees, it looks like Baba Ramdev's Patanjali has now taken a bit of a pause. As you can see on your screens, this is the way the growth figures have risen. So 42.9%, 80%, 70%. This kind of growth was normal for Patanjali. On an average, a CAGR of almost about 70 to 60% is what Patanjali clocked in. And the FY18 numbers, 0% is the kind of growth they've put in. I mean, it's just flattish. So they ended FY18 with a revenue level of 10,000 crore rupees, which is the same as what they ended in FY17. You could say high base, so on and so forth. But the fact is, if we have to pitch this growth compared to what our Indian peers, or rather what the other, what its peers have done, like in HUL or a Dabur or Emami for that matter, and what they did in FY18, essentially you'll be quite surprised that Patanjali has come to a grinding halt. FY18 certainly was quite an exciting year for FMCG. There was GST and the subsequent recovery. We had HUL clocking in 12% domestic growth. There's ITC's non-cigarette business clocking in growth of 11.3%. Nestle, Dabur as well doing decently well. And then you have Patanjali right at the bottom of the list. And do remember, this is the same Patanjali that managed to pose as a big competition to these HULs and ITCs that of course boast of being in the country for the longest period and having that huge revenue base. But I guess you could attribute it to a brand exhaustion of sorts that has come by. Patanjali's household penetration, according to Kantar, was 16% in 2016. It doubled to 31%, and after that the pace of penetration as well has slowed. Brand exhaustion, like I said, is one thing you could attribute it to. That whole fad of Ayurveda and herbal may have probably slowed down. The second factor is the slowdown in the way Patanjali has gone forward with new products. The pace of new launches has slowed down quite a bit. Now there's another factor for Patanjali that could throw it more into its deceleration zone, and that is losing out Ruchi Soya. This is what the edible oil markets looks like currently. With Adani now getting the bid for Ruchi Soya from the creditors, you can see how Adani essentially will capture the top shelf of the market. 19 plus 14, that's 33% grabbed by Adani Wilmar. So they will continue to be the market leaders, and yet it's another blow for Patanjali. Okay, Mubina, we'll leave it at that, and that really makes the case for a chat with Acharya Balakrishna, the MD at Patanjali Ayurveda. Acharya ji, thanks so much. आपने time निकाला और आज हमें join करा ET Now पे. You've seen 100% CAGR in the last 4 years. FY18 में भी आपके flat revenues थे, and that too after जैसे आपके competitors हैं like Unilever, they recorded a very strong double-digit growth. आपको क्या लगता है ये underperformance का क्या reason था? ऐसा देखिए, हम लोगों ने बाकी जितने भी नए यूनिट्स हमको खड़े करने थे प्रोडक्शन के लिए, हमको पूरा एक नई स्ट्रेटजी बनानी थी और नया पूरा सिस्टम के ऊपर काम करना था। तो हम लोग उसको पूरी तैयारी के लिए लगे, इसलिए हमारा ग्रोथ थोड़ा सा इस बार दिखाई नहीं दिया, परंतु बाकी चीज़ें हमारी काफ़ी ठीक हो चुकी हैं और हम अभी आने वाले समय पर आप देखेंगे कि हम लोग उसी गति से फिर हम अपने आगे इस सिस्टम को हम आगे बढ़ाएंगे। ग्रेट। तो अगर उसको नंबर्स में बात करें, 10,000 करोड़ रुपी सेल्स, आप को लगता है कि 30 to 40% प्लस काइंड ऑफ ग्रोथ के दिन जो है अभी पीछे रह गए हैं, आप उसको बीट कर सकते हैं क्या? नहीं, पॉसिबल है। देखिए, सिर्फ सेल्स ही कारण नहीं होता है,
बिक्री के लिए हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमको देखना होता है साथ में काम करने के लिए, तो बाकी सब तैयारियां हमारी अच्छी हो जाएंगी तो फिर इतना ग्रोथ इसीलिए संभव है क्योंकि लोगों का भरोसा भी है पतंजलि ब्रांड के ऊपर, और हमारे पास यदि पूरा नेटवर्क अच्छा होगा, प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कैपेसिटी होगी, तो उस ग्रोथ को अचीव करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है मेरे भाई। हाँ जी आचार्य जी, लेकिन ये स्लो डाउन का क्या रीज़न लगता है आपको? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो हर्बल, नेचुरल, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स से थोड़ा स्टेप बैक कर रहे हैं, उनको नहीं इतना पसंद आ रहे वो प्रोडक्ट्स? नहीं, देखिए जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं या बाकी जितने भी आइटम हैं, गांव में क्या है कि जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र है सारी जड़ी बूटियां वहीं उगती हैं, सारे क्रॉप्स वहीं पर उगते हैं, दाल हो, दलहन हो, अनाज हो, परंतु जो बैकवर्ड लिंकेज है या जो एक क्लस्टर फार्मिंग है, बायबैक एग्रीमेंट है, ये बड़ी कंपनियां कोई भी एक बहुत स्ट्रेटजी के साथ में, प्लानिंग के साथ में कोई कर नहीं रहा मेरी जानकारी में, तो हम उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं। और हमारा पहले से मकसद रहा है कि फार्म से लेकर के फोक तक, यानी कि खेत से लेकर के लोगों के घर तक, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उससे अच्छे प्रोडक्ट हम शहरों में ही नहीं, हम गांव वालों के उगाए हुए प्रोडक्ट गांव तक भी सही ढंग से उसको प्रोसेस करके पहुंचा पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। आचार्य जी, आपको लगता है कि जो दूसरी कंपनियां हैं, डाबर, कोलगेट, यूनिलीवर या HUL इंडिया में, वो लोग भी आयुर्वेदा में अपने प्रोडक्ट्स बनाना चाह रही हैं और शायद उस वजह से एक कंपटीशन आ जाता है, ये क्या आपको दुविधा में डालता है? आर यू कंसर्न्ड अबाउट इट? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि आयुर्वेद नाम से चीज़ों को बेचना एक अलग बात है, आयुर्वेद के नाम पर नॉलेज होना एक अलग बात है। देखिए, आयुर्वेद सिर्फ साबुन शैम्पू नहीं है, आयुर्वेद मेडिसिन है, आयुर्वेद जीवन है, आयुर्वेद रोगों को दूर करने की विधा है। और मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे पास अभी जो NABL लेवल के हमारे पास 3 लैब अभी ऑलरेडी हैं, 2 लैब के लिए अभी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। मुझे नहीं लगता है कि आयुर्वेदिक और हर्बल सेक्टर में काम करने वाली किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के पास NABL लेवल की जो 5 लैब हो इंटरनेशनल लेवल का, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। हमारे पास सैकड़ों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, हमारे पास आयुर्वेद की परंपरा से जुड़े हम लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई फील्ड नहीं चुना जिस फील्ड को हम लोग नहीं जानते हों। हमने उस फील्ड को चुना जिस फील्ड में हमें नॉलेज था है। तो आज काफ़ी हम लोग रिसर्च कर चुके हैं, तो और लोगों का भरोसा भी। देखिए, प्रयास कर कर के मार्केटिंग कर लेना, प्रोपोगेंडा कर लेना अलग बात है, लोगों का विश्वास, क्योंकि पूरा देश जानता है कि यदि आज आयुर्वेद का वातावरण बना है तो पतंजलि की वजह से बना है, तो पतंजलि अभी देश में है। बट पतंजलि आयुर्वेद का 2020 का क्या टारगेट है? बिकॉज लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, यू सेड दैट यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट FMCG कंपनीज टिल 2020 2021। क्या आप वो टारगेट मेंटेन करके रखे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप भरोसा करिए, हम लोग बहुत अच्छी तरह से तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। कुछ आपके एक्विजिशन का प्लान भी था, आप हमें पता चला, ऑफ कोर्स पता है कि आपने रुचि सोया को नहीं खरीदा फिर बाद में जाके, क्या स्टेप्स लेना चाहेंगे आप फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग अप या मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए? नहीं, देखिए, वो सब जुडिशियल है। कल ही हम लोगों के लॉयर्स ने उसको जो अभी कोर्ट में डाला है केस को, अभी वो ख़त्म हुआ नहीं है मैटर। देखिए आगे जो भी होता है, हम लोगों ने जो भी हमारे तथ्य थे, हमारे प्रमाण थे, हमारी बातें थी, हमने रखी हैं और हम अभी पूरा अंतिम समय तक हम उसके लिए पूरी फाइट करते रहेंगे। और हम आपको
बहुत अच्छी विशेज़ के साथ धन्यवाद बोलते हैं। थैंक यू सो मच आचार्य जी फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग।